Assalamu alaikum students. Today we will study about the replication process. Last time हमने डिस्कस किया था different hypotheses या models which were proposed to explain the replication, and today we will study the actual mechanism of the replication of DNA. How DNA replicates. The process in which DNA replicates to form its an exact copy is called as replication. यानी जो पेरेंटल DNA है वो बिल्कुल अपनी एक न्यू एग्जैक्टली सेम कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करता है, देन दिस इज़ कॉल्ड एज द replication. And the process of the replication can be described as, first of all, in the replication of the DNA, the enzyme which is involved is the DNA polymerase enzyme. सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कि DNA रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ द DNA polymerase enzyme. And the DNA polymerase enzyme is very much crucial for the replication of the DNA. And there are three types of the DNA polymerase enzyme. DNA polymerase enzymes की हमारे पास 3 forms हैं which are named as the DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3. DNA polymerase actually involved in the replication process. DNA polymerase first and the DNA polymerase 3. These are actually both which are involved in the replication process. ये दो एंजाइम DNA polymerase 1 and DNA polymerase 3 play a very important role in the replication process. DNA polymerase 1 क्या है? DNA polymerase 1 जो है, it is actually a relatively small enzyme but plays a supporting role in the DNA replication in case of the eukaryotes. यूकैरियोट्स में DNA polymerase 1 जो है वो रोल प्ले करता है इन द DNA replication, whereas the DNA polymerase 3 is the true E. coli replicating enzyme. यानी ये जो है रेप्लिकेटिंग का रोल प्ले करता है इन E. coli. E. coli क्या है? एस्क्रेशिया कोलाई यानी बैक्टीरिया विच आर इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोट्स. And DNA polymerase 3 is 10 times larger than the DNA polymerase 1 and it is more complex than as compared to DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 जो है वो smaller है, whereas the DNA polymerase 3 it is 10 times larger than the DNA polymerase 1 and it is more complex moreover than that polymerase 1. अब हमने देखना है कि DNA polymerase which plays the important role in the replication, इस DNA polymerase के क्या characteristic features हैं. DNA polymerase enzyme जो कि बड़ा crucial है replication के process में, इसके कुछ खास features हैं. For example, DNA polymerase is a dimer and catalyzes the replication of वन DNA स्ट्रैंड. यानी ये DNA के वन स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, ये उसके एक स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन को जो है वो कैटालाइज करता है. और इसके साथ साथ DNA polymerase 3 जो है ये प्रोग्रेसिवली थ्रेड्स द DNA. ये DNA का थ्रेड्स जो है वो बनाता है, DNA thread through the enzyme complex and moving at a rapid rate. और बहुत ही रैपिड रेट पे जो है ये मूव करता है. और वो कितना रैपिड रेट है? दैट इज़ अबाउट सम 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड. यानी इतना ज़्यादा इस DNA polymerase 3 का रेट जो है वो इतना ज़्यादा रैपिडली है कि ये तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जो है ये जो है उसकी प्रोग्रेस जो है वो कॉज करता है DNA स्ट्रैंड की. मोर ओवर द DNA polymerase 3
can add nucleotide only to a growing chain of the nucleotide. ठीक है, DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता है, बट इट डज नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि ऑलरेडी जो रेप्लिकेशन हो रही है उसको, या ऑलरेडी जो ग्रोइंग स्ट्रैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करेगा, एंड दैट इज़ ऑलरेडी पेयर्ड विद द पेरेंटल स्ट्रैंड्स। DNA polymerase cannot initiate synthesis itself own। ठीक है, यानी अगरचे DNA इतना ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इसकी रेप्लिकेशन में, DNA की रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेकिन ये खुद से इनिशिएट नहीं करता सिंथेसिस। लेकिन जो एक ग्रोइंग न्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड तो ऐड करता है, लेकिन उसको इनिशिएट नहीं करता, यानी रेप्लिकेशन को ये स्टार्ट जो है वो नहीं कर सकता। And other important feature of the DNA polymerase is that it can add nucleotides only to 3 end of the DNA strand। यानी कल हमने डिस्कस किया था कि DNA स्ट्रैंड जो है वो एक डबल DNA मॉलिक्यूल जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और वो दोनों स्ट्रैंड जो हैं दे रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यानी एक स्ट्रैंड का जो है वो 3 एंड है, तो उधर दूसरे स्ट्रैंड का जो है वो 5 एंड होगा, और अगर एक का 5 एंड है तो वहाँ पे वो दूसरे स्ट्रैंड का जो है वो 3 एंड होगा। बोथ ऑफ द चेन्स ऑफ द DNA आर द एंटी पैरेलल। तो DNA पॉलीमरेज का जो है ये करेक्टरिस्टिक है कि इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली टू 3 एंड ऑफ DNA स्ट्रैंड। यानी जब भी DNA की सिंथेसिस होनी है या रेप्लिकेशन होनी है, तो जो है वो नए न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड होने हैं, दैट विल बी ओनली एडिड टू 3 एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। 3 एंड पे जो है वो इसकी एडिशन होगी। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे जो है वो गौर करें, तो इसका मतलब अगर वो 3 एंड पे DNA के स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, तो इट मीन्स कि रेप्लिकेशन ऑलवेज विल प्रोसीड 5 to 3, यानी 5 to 3 की डायरेक्शन की तरफ हमेशा रेप्लिकेशन जो है वो होगी, 3 to 5 जो है वो कभी भी नहीं होगी। These were the some characteristics about the DNA polymerase which plays the important role in the replication process. Then there is the involvement of the DNA polymerase के बाद then there is the involvement of the primase and RNA primer। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमेस एंड RNA प्राइमर। As we have discussed that the DNA polymerase cannot initiate the synthesis on its own, यानी खुद से जो है ये सिंथेसिस को स्टार्ट नहीं कर सकता DNA polymerase, so that an other enzyme which is called as the primase, it will first of all construct an RNA primer। ठीक है, यानी DNA पॉलीमरेज जो है वो खुद से इनिशिएट नहीं करेगा रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, बल्कि एक और एंजाइम जो है वो हमारे पास प्राइमेज एंजाइम जो है वो काम करता है, और वो क्या बनाता है, वो सबसे पहले एक प्राइमर बनाता है विच इज़ कॉल्ड एज द RNA प्राइमर। RNA प्राइमर मीन कि उसमें जो RNA जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीऑक्सीराइबोज नहीं होगा, बल्कि राइबोज होगा। RNA प्राइमर जो है वो बनाएगा। RNA प्राइमर एक्चुअली क्या है? RNA प्राइमर आप यूँ ही समझ लें कि जैसे DNA में न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, इसी तरह से RNA प्राइमर जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 RNA न्यूक्लियोटाइड्स। यानी RNA प्राइमर जो है वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है या कोई अलहदा से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स की ही एक अरेंजमेंट है RNA के न्यूक्लियोटाइड्स की। और वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? दैट आर अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड्स। 10 न्यूक्लियोटाइड्स की जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं RNA प्राइमर। और ये प्राइमेस जो है इट कॉज द सिंथेसिस ऑफ द RNA प्राइमर। और ये जो RNA प्राइमर में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो कौन से वाले 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंटल DNA टेम्पलेट।
यानी वो जो पेरेंटल डीएनए है जो उसकी रेप्लिकेशन होनी है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसका कम्प्लीमेंट्री ही आरएनए प्राइमर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मीन कि यानी उधर अगर हमारे पास जो है वो ग्वानिन होगा तो इधर उसके ऑपोजिट जो है हमारे पास जो है वो साइटोसिन होगा। और साइटोसिन तो नहीं होगा क्योंकि ये आरएनए है, साइटोसिन की बजाय यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होगा। और अगर उधर जो है वो ग्वानिन एडानिन होगा तो उधर जो है वो थायामीन होगा। ग्वानिन के ऑपोजिट जो है वो साइटोसिन होगा। लेकिन अगर वो आरएनए होगा तो उसमें थायामीन की बजाय जो है वो यूरासिल प्रेजेंट होगा। एक हो गया हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, उसमें हमने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। उसके बाद प्राइमेज विच विल फॉर्म द आरएनए प्राइमर। ठीक है, वो सबसे पहले जो है वो आरएनए प्राइमर बनाएगा विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज़ द बिगनिंग ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बिगनिंग ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए की रेप्लिकेशन जो है इट बिगन्स एट वन आर द मोर साइट्स। डीएनए की जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है इट मे अकर एट वन आर द मोर साइट्स। एक ही जगह पे या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे जो है वो स्टार्ट हो सकती है ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। और वो कहाँ पे स्टार्ट होगी? एक्चुअली वो वहाँ पे स्टार्ट होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। यानी एक डीएनए ने रेप्लिकेट करना है तो उसकी रेप्लिकेशन एक पॉइंट पे नहीं बट मोर देन वन पॉइंट पे वो स्टार्ट होती है। और कहाँ पे स्टार्ट होती है? जहाँ पे एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, वहाँ से वो स्टार्ट होती है। देन देयर इज़ द सेकंड स्टेप विच इज़ द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पहले उसकी बिगनिंग हुई, अब बिगनिंग होने के बाद देन देयर इज़ द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। द डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड द अदर एंजाइम they start a complex process that catalyzes the addition of the nucleotide to the growing strand of the DNA। ठीक है, ये जो ग्रोइंग स्ट्रैंड होगा डीएनए का उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करेंगे। और वो ऐड कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। But the DNA polymerase 3 will add nucleotide only to 3 end of the DNA strand। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमेशा ये जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 का ये ख़ास करैक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक है कि ये न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 एंड पे जो है वो ऐड करेगा। So that the replication always will proceed 5 to 3 direction in a growing DNA strand। और हमेशा रेप्लिकेशन जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। Then the third step is the formation of RNA primer। तीसरा स्टेप हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करेगा? यानी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएट नहीं करेगा बल्कि इनिशिएट करने के लिए जो है वो आरएनए प्राइमर इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम प्राइमेज। ये हमने सेकंड स्टेप पे भी ये डिस्कस किया था कि प्राइमेज जो है वो इन्वॉल्व होता है एंड इट विल फॉर्म द आरएनए प्राइमर। और वो आरएनए प्राइमर क्या है? वो एक सीक्वेंस है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आरएनए प्राइमर बनेगा। देन द अटैचमेंट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम विल रिकॉग्नाइज द प्राइमर। ये वाला जो नंबर 3 स्टेप पे हमारे पास आरएनए प्राइमर बना है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम विल रिकॉग्नाइज द आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा एंड विल ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो एडिशन काज करेगा एंड विल कंस्ट्रक्ट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए।
और वो न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होते जाएंगे तो डीएनए की स्ट्रैंड की कंस्ट्रक्शन जो है वो होती जाएगी। अब जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे, डीएनए का थ्रेड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। द आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्राइमर देन विल बी रिप्लेस्ड बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी ये जो आरएनए प्राइमर ने, ये जो प्राइमेज एंजाइम ने एक आरएनए प्राइमर बनाया था विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ द 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द आरएनए दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द डीएनए। ठीक है, यानी वो जो प्राइमर में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड थे दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द डीएनए। इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइमर्स। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज द रेप्लिकेशन फोक, के रेप्लिकेशन फोक जो है वो बनती है। रेप्लिकेशन फोक क्या है और वो कैसे बनती है, ये इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर आपने यही स्टेप्स जो हैं वो देखने हैं। एक दफ़ा फिर इसको जो है थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में मेन रोल जो है वो प्ले करता है बेसिक रोल, दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इट कंसिस्ट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड द डीएनए पॉलीमरेज 3। और इसमें से डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 दीज आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। एक जो है वो रोल प्ले करता है प्रोकैरियोट्स में और एक जो है वो यूकैरियोट्स में प्ले करता है। जो प्रोकैरियोट्स में प्ले करता है दैट इज़ द मोर कम्प्लेक्स एंड 10 टाइम्स लार्जर दैन दैट विच प्लेज द रोल इन द यूकैरियोट्स। सेकंड है कि प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, ये हमारे पास एक प्राइमर बनाता है विच कंसिस्ट ऑफ द 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। एंड हाउ द रेप्लिकेशन प्रोसेस अकर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द बिगनिंग ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस, कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे एक ख़ास सीक्वेंस जो है वो न्यूक्लियोटाइड का प्रेजेंट होता है। एंड इट मे स्टार्ट एट 1 और मोर देन 1 प्लेसेस। देन देयर इज़ द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, और इसके साथ साथ फिर सेकंड स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। एंड दिस एडिशन ओनली टेक्स प्लेस एट द 3 एंड द रेप्लिकेशन प्रोसीड 5 to 3 डायरेक्शन। देन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर बनता है और ये इनिशिएट जो है ये जो है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पे जो है वो कंसिस्ट करता है। एंड देन द अटैचमेंट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3, और वो डीएनए पॉलीमरेज 3 विल रिकॉग्नाइज द प्राइमर एंड विल ऐड द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। और इससे पहले जो प्राइमर के आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं दे विल बी आल्सो रिप्लेस्ड by the DNA nucleotides, and then there is the formation of the replication fork। और इसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन फोक क्या है और ये कैसे बनता है, और हाउ द डीएनए स्ट्रैंड गेट्स टू बी द इलोंगेटेड, कि नया स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का कैसे इलोंगेट करता है। ठीक है, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और फिर ही आप नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इसका जो है वो उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।